A very good morning. Myself Mohammad Adnan Saddiqui, and I complete my mechanical engineering from Aryabhat DSU Ashok Vihar campus. And today I am here to discuss about six-axis industrial robot. First of all, I would like to discuss about what is an industrial automation, why we are required industrial robots. So let's begin. So, what is industrial automation? So, industrial automation means performing tasks with minimal human input or minimal human interference. So, the question is arise that what is the requirement to rid of the human interference? And the answer is very simple: to meet the setup standards, to increase the production, to increase the productivity, and one of the most important points, to increase the quality of production and satisfactory the customer demand. So what is industrial automation? Automation means integration of machine control system and a computer, which make a machine automatic. So what are the advantages of industrial automation? So advantages are, first of all, we can increase the production. Automatic machine can make production 24/7, and the quality of each product will be same. So here are the example of some automatic machine. Here is 6-axis industrial robot, BMC vertical milling center machine, CNC lathe machine, automatic packaging machine, and conveyor belt system with sensors. So throughout my presentation, I will focus only on 6-axis industrial robot. So 6-axis industrial robot is a programmable machine which can move along the 6-axis direction, which can make your work fast. And also इसमें क्या होता है कि ये कोई भी टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म कर सकता है अगेन एंड अगेन. जैसा कि यहाँ आप सब देख सकते हैं, एक 6-axis इंडस्ट्रियल रोबोट का एक पिक्चर है. ये अभी मैंने आपको बताया, इट्स अ प्रोग्रामेबल मशीन capable to perform repetitive tasks and move along multiple axes. The axes are X, Y, Z, W, T, R, and sometimes we say that J1, J2, J3, J4, and J5. Remember that in this there are only 3 axes which are responsible for major rotation. J1, J2, J3 are the axes which can increase the reach of robot. But J4, J5, J6 or WPR are the responsible for the movement of the tool. So component of robot. First is robot itself, robot R. Here we have M20 ID25 robot and controller R30IB Mate Plus controller and a teach content and an end effector. So robot can perform the task with a given set of instructions, and instructions are encoded by the teach content, and this whole information or instruction was further performed by the controller, and controller will tell the robot how to move and where to move. Now here is the simple block diagram that how does it communicate with controller. First of all, we have teach pendant. Teach pendant is nothing just like a remote. क्या होता है कि जब प्रोग्रामर इसमें डिजायर्ड प्रोग्राम डालता है, अपने इंस्ट्रक्शन डालता है, और इंस्ट्रक्शन क्या होंगे कि पॉइंट किधर रखना है, मूव कैसे करना है, किस ट्रेजेक्टरी में मूव करना है, इसका पाथ क्या रहेगा, वो सब हम टीच पेंडेंट के थ्रू इनकोड करेंगे और वो सारी इंफॉर्मेशन फिर कंट्रोलर के पास जाती है.
और कंट्रोलर उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और एक काइनेमेटिक्स फॉर्मूले के थ्रू वो रोबोट के हर एक्सिस के सर्वो मोटर्स को बताएगा कि आपको कितने डिग्री में रोटेट करना है, कहाँ रोटेट करना है, और एट द सेम टाइम जो सर्वो मोटर्स की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो सब कंट्रोलर को दोबारा भेजा जाता है एज अ फीडबैक सिस्टम, जिसकी वजह से हमें टीच पेंडेंट पे दिखेगा कि किस मूवमेंट में कौन सी एक्सेस पार्टिसिपेट कर रही है और किस पॉइंट पर वो एट प्रेजेंट खड़ा है हमारा सो जैसा आप सब देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि टीच पेंडेंट का कंट्रोलर का इंटीग्रेट करके हम रोबोट को कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं और रोबोट कैसे एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। Here is the axis rotation of जैसा मैं as I discussed that it has 6 axes, axis 1, 2, 3, 4, 5, 6. So all the axes are separate in name. Axis 1 are known as base rotation and its rotation is about 370 degrees. Axis 2 known as shoulder and it is also known as J2 and its axis is rotated about 260 degrees. Axis 3 known as elbow and it is rotated about 458 degrees. Axis 4 wrist pitch, it rotates about 400 degrees. Axis 5 wrist yoke, it rotates about 360 degrees. And axis 6 wrist roll, it rotates about 900 degrees. But अगर क्या हो अगर हम इस रोटेशन को बढ़ाना चाहें, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सिस 1 पे मैं रोटेशन दे रहा हूँ और वो 370 डिग्री को कंप्लीट कर गया, अब मेरा और रिक्वायरमेंट है कि ये और आगे जाए, तो क्या होगा, ये अलार्म देगा, एक वार्निंग देगा, एक्सेस लिमिट रीच G1 A1. Here G is group 1. So remember that group 1 is by default robot itself. So ये एग्जांपल है एक्सेस लिमिट रीच का। एक ग्रुप 1 पे एक्सेस 1 में एक्सेस लिमिट आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टीच पेंडेंट के थ्रू उसको दोबारा पीछे लेकर आना पड़ेगा। बट अगर हम इसे इग्नोर करते हैं और ये सारे और इन सब की एक्सेस लिमिट आ गई, तो रोबोट हमारा लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम उसे दोबारा कोड स्टार्ट करके फर्दर इसको प्रोसेस करना पड़ेगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैक्सिमम स्पीड, रोबोट के हर जॉइंट की कुछ ना कुछ स्पीड है, तो ये यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड नोट की गई है। आप चाहें तो आप लोग इसका फोटो ले सकते हैं। एक्सिस 1 की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 210 डिग्रीज पर सेकेंड, ये सब डिग्री पर सेकेंड में है, ना कि mm पर सेकेंड। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये सारे इसकी एक्सेस जो एक्सेस रोटेट्स होती हैं उन सबके स्पीड्स, मैक्सिमम स्पीड्स ऑफ नाउ पार्ट्स ऑफ द कंट्रोलर। जैसा कि मैंने बताया, कंट्रोलर को हम ब्रेन ऑफ द रोबोट बोल सकते हैं, क्योंकि कंट्रोलर क्या कर रहा है, कंट्रोलर बता रहा है रोबोट को कि कहाँ मूव करना है, कैसे मूव करना है, स्पीड क्या रखनी है। तो इसके कुछ पार्ट्स हैं, सर्किट ब्रेकर, इमरजेंसी स्टॉप बटन, साइकिल स्टार्ट बटन, मोड सिलेक्टर स्विच, कूलिंग फैन एंड यूएसबी पोर्ट। This USB port known as UD1 inside the each packet. When you are using USB port, then you have to select UD1. So here it's a mode, it's a circuit breaker. ये क्या काम करता है, सबसे पहले तो ये जैसे इसके नाम में सर्किट ब्रेकर, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट करेगा, ऑन करेगा और शॉर्ट सर्किट के टाइम पर, ओवरलोडिंग के टाइम पर ये एक तरह से सेफ्टी स्विच का भी काम करता है। इमरजेंसी स्टॉप बटन, यहाँ आप देख सकते हैं रेड कलर का इमरजेंसी स्टॉप बटन है कंट्रोलर के ऊपर। फॉर एग्जांपल रोबोट अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है और कोई मिस हैपनिंग हुई, कोई पर्सन उसके सामने आ गया या फिर कोई पार्ट है तो नीचे गिर गया जिसकी वजह से रोबोट को या फिर किसी ह्यूमन को हार्म हो सकता है, तो हम उस स्टेट में क्या करेंगे, इमरजेंसी स्टॉप बटन का यूज करके इसको स्टॉप करेंगे। और ये हार्ड स्टॉप होता है, रोबोट के अंदर दो तरीके के स्टॉप होते हैं, एक हार्ड स्टॉप होगा, एक सॉफ्ट स्टॉप होगा। हार्ड
स्टॉप में क्या होता है कि जब रोबोट रुकता है तो एज इंस्टेंट रुकता है, सारा का सारा जितना भी प्रोसेस वो कर रहा है वो 1 सेकेंड के 100 टाइम कम में वो रुक सकता है। तो इस पे एक जर्क भी लगता है, तो मे बी इसके जो जॉइंट्स हैं उनको कोई हार्म हो सकता है, इसके सर्वो मोटर्स को कोई हार्म हो सकता है। तो बट इमरजेंसी स्टॉप बटन का यूज हम कहाँ करते हैं? इन केस ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट इज साइकिल स्टार्ट बटन। दिस इज साइकिल स्टार्ट बटन। क्या होगा कि हमने कोई प्रोग्राम रोबोट को दिया, अब वो प्रोग्राम ऑटो पे रन करेगा क्योंकि इसका काम है 24 घंटे चलना। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए साइकिल स्टार्ट बटन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट मोड सिलेक्टर स्विच। मोड सिलेक्टर स्विच, यहाँ से हम 3 डिफरेंट मोड पे स्विच कर सकते हैं, T1 मोड, T2 मोड और ऑटो मोड। ये मोड सिलेक्टर स्विच का काम हम करते हैं एट द टाइम ऑफ टीचिंग, जब हम रोबोट को टीच कर रहे हैं, प्रोग्राम को बना रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको और डिटेल में मोड सिलेक्टर स्विच के बारे में बताने वाला हूँ, हर मोड के बारे में बताने वाला हूँ कि T1 मोड में क्या होता है, T2 मोड में किस तरीके से फंक्शन होता है। कूलिंग फैन, जो कि कंट्रोलर के जो अंदर आईसीज हैं, कंट्रोलर्स हैं, उनको ठंडा रखने के लिए। और यूएसबी पोर्ट का जो फंक्शन होगा, यहाँ पर हम पेन ड्राइव इंसर्ट करके सभी प्रोग्राम का या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं और इवन कोई एक्सटर्नल प्रोग्राम लाकर हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो इसलिए हम यूएसबी पोर्ट का यूज करते हैं। जनरली रोबोट के अंदर 2 यूएसबी पोर्ट है, एक तो कंट्रोलर में और दूसरा टीच पेंडेंट। टीच पेंडेंट के यूएसबी पोर्ट को शो करते हैं हम UT1 से और कंट्रोलर के यूएसबी पोर्ट को शो करेंगे हम UT1 से। डिफरेंट मोड ऑफ मोड सिलेक्टर्स, यहाँ पे 3 मोड है, T1 मोड, T2 मोड एंड ऑटो मोड। और ये कुछ स्पीड्स है। T1 मोड का यूज हम करते हैं जब हम टीचिंग कर रहे हैं, रोबोट को टीच कर रहे हैं, उसको एक कोऑर्डिनेट हमें बहुत ध्यान से बताना पड़ता है कि कौन सा कोऑर्डिनेट कहाँ मूव होगा, कौन सा पॉइंट किधर मूव होगा। तो T1 मोड में जो इसकी स्पीड रहेगी वो लेस देन 250 mm पर सेकेंड तक रहेगी। बट जब हम इंडिविजुअल जॉइंट को मूव करेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं J1 को रोटेट कर रहा हूँ, उसके बाद J2 को रोटेट कर रहा हूँ, तो उसमें ये स्पीड चेंज होगी लेस देन 10%। स्पीड जो है इंडिविजुअल जॉइंट में क्या होगा, लेस देन 10% होगी, विच मीन ये स्पीड 25 mm पर सेकेंड से भी कम आपको मिलेगा T1 मोड के अंदर। और क्या होगा कि टीच पेंडेंट के ऊपर कुछ सेफ्टी बटन्स होते हैं जैसे डेडमैन स्विचेस, वो हमें प्रेस करके रखने पड़ेंगे टीचिंग के टाइम पे जब भी T1 मोड में हमारा रोबोट मूव करता है। नेक्स्ट आता है T2 मोड। जब हमने T1 मोड में प्रोग्राम बनाया, उसको स्लो स्पीड पर रन करके देखा, हमने देखा कि प्रोग्राम हमारा ठीक चल रहा है, कोई मिसहैपनिंग नहीं हो रही, जो हमारे डिजायर्ड पाथ है रोबोट वो पाथ को फॉलो कर रहा है। उसके बाद हम T2 मोड में मूव करेंगे और यहाँ पे स्पीड जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू 100% होगी। जो स्पीड हमने प्रोग्राम में दी है तो 100% स्पीड पे कैपेबल होता है चलने के लिए। और इंडिविजुअल जॉइंट जब उसके मूव करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया G1 को मूव कराना है, G2 को मूव कराना है, तो T2 मोड में इक्वल टू 10%, जो हर जॉइंट की जो स्पीड होगी वो इंडिविजुअल में इक्वल टू 10% हमें दिखाएगी। तो जब हमने प्रोग्राम को T1 मोड में टीच करा, उसे टेस्ट करा, T2 मोड में टेस्ट करा और उसके बाद अब हम इसको ऑटो मोड में चला सकते हैं। ऑटो मोड में प्रोग्राम की स्पीड जो है 100% होती है और 100% स्पीड वो होगी जो स्पीड हमने प्रोग्राम में सेट करी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी डिजायर्ड है 100, मैं चाहता हूँ कि ये 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चले, बट प्रोग्राम के अंदर ही मैंने उसे रेस्ट्रिक्ट कर रखा है कि 50% पे चलेगा। तो टीच पेंडेंट पे तो भले ही वो 100% दिखाएगा, बट उसकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, 50 mm पर सेकेंड के हिसाब से उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। तो ये काम करता है मोड सिलेक्टर स्विच, जिसकी वजह से हम ये तीनों मोड को चेंज कर सकते हैं और ये की हेल्प से ऑपरेट होगा। नाउ एप्लीकेशन, अभी जैसा हमने देखा रोबोट के बारे में थोड़ा बहुत समझा कि किस तरीके से फंक्शन करता है, तो इसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं।
जैसे यहाँ आप सब देख सकते हैं कि असेंबली लाइन, कार असेंबली लाइन, यहाँ हम देखते हैं एक सिंगल रोबोट है, ठीक है। बट असेंबली लाइन में बहुत सारे रोबोट एक साथ मिलकर इंटीग्रेट होकर अपना अलग अलग टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे असेंबली ऑपरेशंस के लिए हम इसको यूज करेंगे, वेल्डिंग ऑपरेशंस के लिए यूज करेंगे, पिक एंड प्लेस ऑपरेशंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, पेंटिंग ऑपरेशंस के लिए, स्क्रू फास्टनिंग के लिए और मटेरियल हैंडलिंग के लिए इसका यूज करते हैं। जब हमने ह्यूमन इंटरफेरेंस को हटाया तो हमने देखा हमारा प्रोडक्शन फास्ट हो गया, और और दूसरी बात क्या हुआ, मटेरियल लॉस होना कम हो गया, ठीक है। तो इसलिए हमने रोबोट का यूज करा इंडस्ट्री के अंदर, ताकि हमारा प्रोडक्शन फास्ट हो जाए और मटेरियल वेस्टेज हमारी कम से कम हो। तो ये था हमारा रोबोट का इंटरव्यू। सो हियर आई एम।